Okay, now today we'll start with the subtopic. We have seen the different addressing modes. So I hope you have revised the different addressing modes. So total 12 and group into 5. Okay. Now we are moving further to understand the concept of the timing, which already I have explained you. But we'll see what is the meaning of this. Okay. You can just write down instruction execution time. Instruction execution time. This thing I have already explained you while explaining you the bus cycle, that is write bus cycle and read bus cycle. Okay. So here I would be explaining you this particular execution time, यानी हर एक instruction को कितना time लगता है. And the Intel, the manufacturer of 8086, the Intel has given in the manual that to perform so and so instruction इतना clock cycles लगता है, इतना clock cycle लगता है. Already मैंने आपको बताया था, I have already told you that your every instruction will work with reference to the clock pulses. With reference to the clock pulses. Okay. तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ तो this becomes T1. Then from here to here it becomes T2. Then from here to here it is T3 and so forth. Okay. Now I have told you that how do you get this T1? It depends upon your frequency in which your 8086 is operating. Okay. I have told you the frequency. Okay. So with reference to this frequency, you are getting these clock pulses, and the reciprocal of the frequency will give you the time period. So you will be able to understand कि एक clock कितने time का होता है, and depending upon that we will be calculating कि वो instructions को कितना time लगता है, वो instructions को कितना time लगता है. Even I have told you one bus cycle will consist of T4 states. Total states कितने उसमें से 4 states होते हैं. Am I right? Please correct me if I am wrong. Already I have taken this. So every bus cycle, every read cycle रहे या फिर write cycle रहे, हमने देखा था timing diagram में. So I have taken T1, T2, T3 and T4. तो एक रीड बस साइकिल या फिर राइट बस साइकिल 4 स्टेट्स में खत्म होता है. मुझे अगर कहीं लिखना है या फिर कहीं मुझसे इफ आई वांट टू रीड फ्रॉम द मेमोरी, so it requires T4 total 4 states या फिर 4 clock period. और हमने देखा था कि एक क्लॉक पीरियड में क्या क्या हो रहा है, दूसरे क्लॉक पीरियड में क्या क्या हो रहा है, तीसरे क्लॉक पीरियड में क्या क्या हो रहा है. Okay, and we have drawn the timing diagram. So timing diagram can be for writing and as well as for reading. Okay, so important thing is that every bus cycle is having 4 states: T1, T2, T3, T4. I have explained you what is the bus cycle. I have explained you what is the machine cycle, instruction cycle. Okay, now here instruction execution cycle means that Intel has given in the manual to perform so and so instruction how many bus cycles, or don't say bus cycle, it gives you the understanding कि उसको how many number of clock period is required. The number of clock period is required. Okay. For example, if I am writing down, अगर मैं लिख रहा हूँ, suppose I am writing down move, I am writing down in general. If I am writing down move memory, comma, and any register 1. Now this is in general. So move memory, MEM memory, comma, register 1. That means कौन सा भी एक रजिस्टर 1 जो है उसमें से जो डेटा है वो मुझे मेमोरी में ट्रांसफर करना है. ओके. सो हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन बाइट इट रिक्वायर्स, ये कितना इंस्ट्रक्शन बाइट खाता है, ये कितना बाइट खाता है. So every instruction will consume some bytes. Okay, and the range is from 2 to 4. The range is from 2 to 4 bytes. Okay, so it means that move memory comma register 1
हैज दिस इंस्ट्रक्शन, उसका साइज और नंबर ऑफ बाइट्स कितना खाता है, वो 2 to 4 बाइट्स खाता है. So your every instruction will have some ranges कि वो particular instruction कितना बाइट, उसको कितना बाइट लगता है, because you know that this instruction is stored into your code register, sorry, code segment, and your code segment is holding the opcode. Okay, जैसे move का opcode है, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ move memory comma register 1, तो जैसे कोड सेगमेंट होता है, जैसे डेटा सेगमेंट होता है, वैसे कोड सेगमेंट होता है. तो कोड सेगमेंट में भी ऑपकोड रहेगा. ये ऑपकोड किसका है, मूव का है. ये ऑपकोड किसका है, मूव का है. तो ये कोड सेगमेंट में ये ऑपकोड जो रहेगा मूव का, वो कितना बाइट खाएगा, क्योंकि आपको पता है एक बाइट एक लोकेशन में स्टोर होता है, एक बाइट एक लोकेशन में स्टोर होता है. ओके, तो मूव के लिए इट विल हैव 2 to 4 बाइट्स. तो एक बाइट में ऑपकोड का मूव का ऑपकोड नहीं होता है, लेकिन फॉर मूव मेमोरी कॉमा रजिस्टर 1, फॉर मूव मेमोरी कॉमा रजिस्टर 1 you may require 2 to 4 bytes. So this is for 1 byte, this is for second byte, this is for third byte, this is for fourth byte. Okay, तो हमेशा याद रखना है every instruction will consume some byte. Where? In the code segment. In the code segment. Okay, तो ये मैंने जनरली लिखा है कि move memory comma register 1. ये this is in general, not specifically. तो ये instruction may consume the byte 2 to 4 bytes. Where? In the code segment. In the code segment. क्योंकि कोड सेगमेंट में तो इसका ऑपकोड स्टोर होता है, इसका ऑपकोड स्टोर होता है यहाँ पे कोड सेगमेंट में. ओके, और हम बाद में मेमोरी से जो डेटा लेते हैं या फिर रजिस्टर में से जो डेटा मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं. ओके, रजिस्टर में से जो मेमोरी हम ट्रांसफर करते हैं वो अलग चीज होती है. ओके, लेकिन ये पर्टिकुलर ऑपकोड विल कंज्यूम 2 to 4 बाइट्स इन द कोड सेगमेंट, इन द कोड सेगमेंट. ओके, नाउ हियर एग्जीक्यूशन टाइम of every instruction of 806 is specified by Intel, is specified by Intel. Okay, so in terms of clock cycles, what you will say in terms of clock cycles or period of cycles, you can say that the execution time can be determined. I will write down here the execution time. हर एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगा, हर एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगा. So I can say the execution time can be determined by multiplying. I have to multiply something. I have to multiply something. I have to multiply something. So what you will multiply? You will multiply the number of clock cycles. So here it comes the number of clock cycles. So number of clock cycles into number of clock cycles means ये एक क्लॉक साइकिल, ये सेकेंड क्लॉक साइकिल, ये थर्ड क्लॉक साइकिल, बराबर है ना. सो हर एक इंस्ट्रक्शन विल हैव सम क्लॉक साइकिल्स. ओके, सो द एग्जीक्यूशन टाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स needed to execute the instruction by the time period of the processor. अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लेंगे 8086. तो मुझे बात बताओ, अगर आपको पता है कि एक टाइम पीरियड कितना है और सपोज ये इंस्ट्रक्शन को लगा है 4 क्लॉक पल्सेस या फिर 4 क्लॉक साइकिल्स, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू, और सपोज एक टाइम पीरियड है 0.01 माइक्रोसेकेंड. ये हमने देखा है, we have seen this, t is equals to 0.01. पिछले बार हमने देखा है this. So अगर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने को 4 क्लॉक साइकिल्स लग रहे हैं, तो टोटल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए कितने टाइम लगेगा. सो इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, तो उसको लग रहा है 4. सो आई एम राइटिंग डाउन हियर 4 इनटू our time period is 0.01. So I can say 0.01 microsecond. So it comes to be 0.04 microsecond. So I have taken an example कि ये move, अगर मैं लिखता हूँ move और ये आपकी memory. Okay, if I want to send the data into the memory, so if the memory is suppose 5624 comma register अगर मुझे लेना है BX, this is specific example now.
आपको पता है मेमोरी का लिखना है तो मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो bx का जो भी कंटेंट है वो 5624 जो फिजिकल मेमोरी रहेगा, तो आपको कन्वर्ट करना है फिजिकल मेमोरी में। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 16 बिट लिया है 5624। तो आपको पता है इफेक्टिव एड्रेस कैसे निकालना है। ओके, लेकिन आई हैव टू मेंशन द ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कि आई एम स्पेसिफाइंग टू दैट मेमोरी लोकेशन। ओके, तो bx में जो भी कंटेंट है, बिकॉज bx इज नथिंग बट रजिस्टर, it is nothing but register, and memory is given by any number. If I'm writing down 5624, okay, and this is in which data, in which segment? Data segment. So move bracket 5624 bracket close comma bx. This is specific one, and this is in general. This is in general. तो मैं अगर मुझे अगर चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने को कितना टाइम लगा है, so then what you will do, you will multiply the number of clock pulses needed to execute the instruction. ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने क्लॉक पल्सेस लगे, क्योंकि आपको पता है हर एक इंस्ट्रक्शन क्लॉक पल्सेस के हिसाब से काम करता है। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन को अगर 4 क्लॉक पल्स लग रहे हैं, 4 क्लॉक पल्स लग रहे, तो मुझे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? 4 क्लॉक पल्सेस इनटू 0.0, दैट इज कैन आई से टाइम पीरियड ऑफ प्रोसेसर 8086। टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड है 0.01, सो मल्टीप्लाई यू विल गेट 0.04। सो कैन आई से टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन आई रिक्वायर 0.04 माइक्रोसेकंड। आई रिक्वायर 0.04 माइक्रोसेकंड। ओके, 0.04 माइक्रोसेकंड। अभी दूसरी बात, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अभी दूसरी बात, अगर आप ये प्रॉपरली देखोगे, नाउ देयर इज सम टाइम रिक्वायर्ड टू फेच द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। अगर मुझे मेमोरी में डेटा ट्रांसफर करना है, सो आई हैव टू फेच द मेमोरी लोकेशन। सो टू फेच दैट मेमोरी लोकेशन आल्सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। So time is required to fetch the memory also. So always remember, any instruction in which there is memory access, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे वो मेमोरी फेच करने को जो टाइम लगता है वो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम में वो ऐड होता है, प्लस। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम में सिर्फ हमको नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स इनटू टाइम पीरियड करने से काम नहीं होता है, हमको और भी कुछ एडिशन करना पड़ता है। तो एडिशन कब होगा? जो इंस्ट्रक्शंस में हम मेमोरी को कॉल कर रहे हैं, या फिर मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, या फिर हम डेटा मेमोरी से एक्सेस कर रहे हैं, या फिर डेटा को हम मेमोरी से फेच कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से wherever memory अगर रोल is playing an important role in the instruction, then that time of fetching of the data from that memory is getting added. जितना टाइम लगता है उसको भी हमको इसको ऐड करना पड़ता है। ओके, वो भी हमको इसको ऐड करना पड़ता है। ओके, और अगर जहाँ पे सपोज इन जनरल में अगर लिख रहा हूँ मूव ax कॉमा bx, इसमें मेमोरी दिख रही है? कहीं मेमोरी का कुछ रोल है इसमें? नहीं है, मेमोरी का कुछ भी रोल नहीं है इसमें। तो ये प्योरली रहेगा नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, इसको जितना लग रहा है इनटू टाइम पीरियड। सो देयर इज नो एडिशन बिकॉज आई एम नॉट एक्सेसिंग एनीथिंग फ्रॉम द मेमोरी, इट इज प्योरली बोथ आर रजिस्टर्स। और ये दोनों कहाँ पे है? आपका ईयू में, एग्जीक्यूशन यूनिट में है। तो हमको कहीं से भी मेमोरी को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी के रिलेटेड नहीं होते, वो प्योरली नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स इनटू टाइम पीरियड ऑफ द प्रोसेस, खत्म। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अभी और एक बात है, देयर इज थर्ड पॉइंट। मैंने ये 2 पॉइंट सिखा दिए, एग्जीक्यूशन टाइम, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम। सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया कि प्लस कब होगा। अभी थर्ड ये है कि वो टाइम कितना लगने वाला है मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन, कान खोल के सुनो प्रॉपरली, दैट डिपेंड्स अपॉन which addressing mode you are using in the instruction. We have seen in the addressing modes, there are 12 addressing modes and we have grouped them into 5 categories. तो हम कौन सा addressing mode use कर रहे हैं, depending upon that time is calculated.
किसी इफ यू सी प्रॉपरली, अगर जिन लोगों को प्रॉपरली एड्रेसिंग मोड समझ में आए उनको समझ में आएगा कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स को कम टाइम लग सकता है मेमोरी को पेश करने को, कौन कौन से मेमोरी एड्रेसिंग को ज्यादा टाइम लगता है, किसी किसी मेमोरी एड्रेसिंग को ज्यादा टाइम लगता है. Okay, so depending upon the addressing mode which you are using in the instruction, okay, your execution time will vary. जो प्लस मैं बोल रहा हूँ ना, that is to fetch them from the memory, and कितना टाइम लगता है that depends upon which addressing mode you are using. Okay, depending upon that your additional time is varied. Your additional time is varied. Okay, तो मैं एक टेबल लिख के दूंगा. इन द टेबल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किसको कितना टाइम लग रहा है, किसको कितना टाइम लग रहा है, एंड यू विल बी एबल टू जस्टिफाई दैट आल्सो. आपको खुद को समझ में आएगा कि हाँ सर इसको ज्यादा टाइम लग रहा है बराबर है, इसको कम टाइम लग रहा है बराबर है. ओके, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग बाय योरसेल्फ. ओके, so before I proceed, if you have any questions related with this, because these are more basic parts, mostly we are omitting this. हम इसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है. हमको समझ में तभी आता है कि एक्चुअली कितना टाइम लग रहा है. Okay, so instruction execution time is very important. If it is okay to everyone, I can give you some dictation on this. Please write down. And one important thing today, today I have shared you something in the classroom, that is the PPT. So as far as instruction sets, addressing modes are concerned, you have to see that PPT, and that PPT is completely based upon this book नागुर कहानी, जो मैंने पहले भी बताया था. ओके, ए नागुर कहानी. तो पीपीटी में जो भी या फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम दिस नागुर कहानी एज वेल एज बाय रेफरिंग दैट पीपीटी. तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू रेफर दैट पीपीटी एज वेल एज आई हैव शेयर्ड यू दिस बुक आल्सो. ए नागुर कहानी का मैंने ई बुक शेयर किया है. ओके, सो प्लीज गो थ्रू दैट. Okay, because and one more important thing, it is difficult for me to complete the each and every instruction. It is not possible. It is not possible to cover all each and every instruction. But which are basic instructions, which are mostly used instructions, वही हम देखेंगे. Other instructions you have to do by yourself. And for that, refer the ebook as well as the PPT, which I have shared today. Okay. Or do not neglect this particular module, because this is a this will give you full marks. This both scoring होता है और easy होता है. The question may be asked to explain this instruction. आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करो. एक कमांड दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करो. ओके, एंड फॉर मी इट इज नॉट possible to cover each and every instruction. So some of the part you have to do by yourself. Okay, so please refer this A Nagur Kani ebook. Write down in this instruction execution time. Whatever I have scribbled this, you can just scribble in your notebook and write down the execution time of each instruction of 8086. The execution time of each instruction of 8086 is specified by Intel. In terms of clock cycles or periods of the processor. In terms of clock cycles or periods of the processor. ये सब मैंने लिया है. Okay, you please go through the back notes and please understand this. Timing diagram में ये सब मैंने properly सीखा है. Full stop. The execution time can be determined by multiplying the number of clock cycles. फटाफट लिखो. The execution time can be determined by multiplying the number of clock cycles needed to execute the instruction. By and multiply by the time period of the processor clock. ये जो मैंने इक्वेशन लिख के दिया वही है वो. Number of clock cycles required for the instruction into time period of the processor 8086. Okay, then write down. हाँ, ये जो अभी सेकंड वाला पॉइंट ये तो हो गया. अभी वो सेकंड वाला एडिशन वाला जो पॉइंट. When the instruction execution involves memory access, then extra time is needed.
then extra time बोले तो ये प्लस वाला addition, then extra time is needed for memory address calculation, क्योंकि जब हम मेमोरी को हमको एक्सेस करना है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। फिजिकल एड्रेस 20 बिट का होता है और आपको पता है फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन, तो वो कैलकुलेशन को भी तो टाइम लगने वाला है ना। सो दैट इज व्हाई यू हैव रिटन दैट देन एक्स्ट्रा टाइम इज नीडेड फॉर मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन, फुल स्टॉप। दिस एक्स्ट्रा टाइम is denoted as यहाँ पे लिख रहा हूं मैं EACT और ब्रैकेट में लिखो इसका फुल फॉर्म, जो आपको ऑलरेडी पता है, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन टाइम। फुल स्टॉप, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरलाइन दैट सेंटेंस। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस कैलकुलेशन, in bracket में write down EACT, the time required for address calculation, bracket में EACT, bracket close, depends on addressing mode used in the instruction, नेक्स्ट पैरा में लिखो। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको एस्ट्रिक देना है। ओके, ये पैरा को एस्ट्रिक देना है। द एग्जीक्यूशन टाइम is also calculated. I won't answer from you for this para. Okay, I will be asking any one of you the question regarding this particular para. So pay attention. The execution time specified is also calculated by assuming that word operand is located in an is calculated by assuming that word operand is calculated in an even address, full stop. If the word operand is located in an odd address, pay attention to the words. If the word operand is located in an odd address, then the processor executes 2 bus cycles. For each memory access. And so 4 extra clock cycle has to be added, to execution time of the instruction for each memory access. ये पैरा को एस्ट्रिक दो, 1-2 बार पढ़ो। आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चन ऑन दिस। बिफोर दैट shall I rub this? Yes, sir. Okay. एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ पर्टिकुलर पर्सन, किसको पता है, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर। और ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है।
ये मैंने ऑलरेडी सीखा है. यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. सर. हाँ, सर. हु इज दैट? सर साहेब बाजवा. हाँ बोलो. सर अगर इवन में स्टोर्ड है तो सर लोअर बाइट एक्सेस करेंगे तो सर वो तो हम लोग मतलब बाय डिफॉल्ट सर पहले लोअर बाइट ही एक्सेस करते हैं. तो मतलब लोअर हाफ ऑफ द ये मेमोरी. तो सर हाँ. वो इवन में स्टोर्ड होता है तो सर उसके लिए एक ही क्लॉक साइकिल लगेगा. लेकिन अगर सर अगर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज लोअर बाइट ही अगर ऑड में स्टोर्ड तो पहले ऑड एग्जीक्यूट होगा फिर उसके नेक्स्ट वाला इवन एग्जीक्यूट करने के लिए 2 बस साइकिल्स लगेंगे. यस, तो यू आर सर राइट, यू आर जो राइट. इंस्ट्रक्शन है सर उसको जो अब 2 बाइट तो सर उसको 2 क्लॉक साइकिल्स अगर लगेंगे और इसको अगर 2 लगेंगे तो इट विल बिकम 4. सर ऐसा है क्या? यस, ये देखो, आपको मैंने बताया था इवन बैंक, और मैंने बताया था ऑड बैंक. मैंने फिगर ड्रॉ किया था. मैंने फिगर ड्रॉ किया था ये ऑड बैंक का, और मैंने ऐसा बनाया था. और यहाँ पे आपका था प्रोसेसर. यहाँ पे आपका था प्रोसेसर. ओके, इवन ऑड. तो मैंने यहाँ पे किया था 0001. यहाँ पे था 0 0000, देन इट कम 0001, देन यहाँ पे 00002, यहाँ पे 00003. बराबर है. तो देखो, आपका अगर वर्ड को आपको एक्सेस करना है बैंक में से, मेमोरी में से, वर्ड मीन्स 16, और एक की कैपेसिटी होती है 8 बिट. तो 8 बिट प्लस 8 बिट गिव्स यू 16, दैट इज अ वर्ड, वन वर्ड. ओके, अगर आपको 16 बिट को एक्सेस करना है मेमोरी में से, तो आपका लोअर बिट होना चाहिए इवन में. लोअर 8 बिट, और हायर 8 बिट होना चाहिए ऑड में. क्योंकि दोनों भी एक ही लोकेशन, इवन एंड ऑड, इवन बैंक में से ये लोकेशन और ऑड बैंक में से ये लोकेशन. सो इसको एक्सेस करने के लिए आपको 2 बस साइकिल्स में काम होता है. क्योंकि मैंने आपको लिखा था आपको लिख के दिया था, ऑड एंड प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स 2 बस साइकिल्स फॉर ईच. तो इसको एक बस साइकिल लगेगा लोअर मेमोरी को एक्सेस करने के लिए 1 बस साइकिल, और हायर के लिए भी द सेकंड बस साइकिल. एक ही में हो जाएगा ना सर? सर एक ही बस साइकिल में हो जाएगा? हाँ, एक ही बस साइकिल में दोनों भी काम हो जाएंगे, एक ही बस साइकिल में. क्योंकि ये जो हम पॉइंट कर रहे हैं एड्रेस को, ये मैंने सब सिखाया है. हम ये जो पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट हो रहा है और यहाँ पे भी पॉइंट हो रहा है. मैंने ऐसा बताया था, ये सीधा चाहिए, ये ऐसा टिल्ट नहीं चाहिए, ये भी मैंने बताया था. मैंने ऐसा करके दिखाया था आपको, टिल्ट नहीं चाहिए. ऐसा करेंगे तो 1 बस साइकिल में काम होता है. अगर टिल्ट हो गया तो 2 बस साइकिल लगते. और आपको पता है एक बस साइकिल में 4 स्टेट्स होते हैं. और ये जब तक ऐसा है तो 4 क्लॉक साइकिल्स में काम हो जाता है. लेकिन ये जब ऐसा होता है तो और एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल लगते हैं. 4 एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल है. वो कैसे? आपका लोअर इधर है और हायर इधर है. लेकिन अगर आपका लोअर इधर है, तो नेक्स्ट हायर, इसके बाद का हायर इधर जाएगा. और इधर हायर गया, इसका मतलब ये वाला जो है वो टिल्ट हो जाएगा. ये टिल्ट होगा, इसका मतलब एक्चुअली टिल्ट नहीं होता है वो, ये जो है वो फिर नीचे आ जाता है. तो पहले क्या करता है, इवन में तो कुछ नहीं है, ऑड में से लोअर ले लिया 8 बिट, बाद में ये नीचे जाता है. नीचे जाने के बाद फिर हायर लेता है. तो यहाँ पे 1 बस साइकिल यूज हो गई. नीचे आने के बाद सेकंड बस साइकिल में हायर 8 बिट्स रीड हो जाते. तो एक्चुअली टिल्ट का होता है, ये टिल्ट होता नहीं है. इसका मतलब ऐसे नहीं, ये टिल्ट होता है. इसका मतलब होता है कि ये वो नीचे आ जाता है, ये नीचे आ जाता है. मैं रेड में बनाता हूँ, रेड कलर में, ताकि आपको और क्लियर समझ में आए. तो जब भी आपका 1 वर्ड इज स्टोर्ड इन द इवन बैंक, इसका मतलब लोअर 8 बिट हियर एंड हायर 8 बिट हियर. ये मैंने गलत किया शायद,
लोअर इधर चाहिए, हायर इधर चाहिए। तो अगर आपका वन वर्ड पहले इवन इसमें स्टोर्ड है, इसका मतलब लोअर 8 बिट यहाँ पे, हायर 8 बिट यहाँ पे, तो वन बस साइकिल में आप रीड कर पाते हो, वन बस साइकिल में आप रीड कर पाते हो। लेकिन अगर आपका लोअर 8 बिट अगर इधर है, मैं यहाँ पे अभी रब कर रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं लोअर, आपका वन वर्ड जो लोअर 8 बिट अगर ऑड में है तो हायर बिट इधर जाएगा, तो वन बस साइकिल में पहले लोअर को रीड हो जाएगा और ये नीचे आने के बाद हायर रीड हो जाएगा। तो ये रीड करने के लिए वन बस साइकिल और दूसरा बस साइकिल हायर 8 बिट के लिए, तो ये मेरा टाइम चला गया ना यहाँ पे। तो एक्चुअली कितना एडिशन होगा इसमें, 4 क्लॉक साइकिल, क्योंकि आपको पता है वन बस साइकिल और एक साइकिल will have 4 clock periods और 4 clock cycles. So इसको एक साइकिल 4 क्लॉक, इसको एक साइकिल 4 क्लॉक. So don't you think this is the addition one? This is the additional part. जो अगर एक इसमें मेरा काम हो रहा था, 4 क्लॉक में मैं दोनों भी रीड कर रहा था, अभी मुझे 8 क्लॉक लग रहे हैं इसको रीड करने और इसको रीड करने में, अगर जब आपका लोअर बिट ऑड इसमें होता है, ऑड इसमें होता है, तो वही सेंटेंस है। तो आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना, वो इस पे भी डिपेंड है कि आप मेमोरी में वन वर्ड जो रहता है या फिर 16 बिट जो रहता है वो कहाँ से एक्सेस कर रहे हो, इवन से कर रहे हो पहले या फिर ऑड से कर रहे हो पहले। अगर इवन से कर रहे हो तो वन बस साइकिल, दैट मीन्स 4 क्लॉक साइकिल। अगर ऑड से कर रहे हो इसका मतलब 2 बस साइकिल, टोटल 8 क्लॉक साइकिल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सब सिखाया है, ये कुछ नया नई बात नहीं है, दिस इज नॉट न्यू टू यू ऑलरेडी, क्योंकि लेकिन मुझे ये इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइमिंग में मुझे ये बताना जरूरी था। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, लेट मी कंक्लूड। योर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड्स अपॉन what type of instruction you are using. Okay, so how do you calculate that? We calculate that by the time, the clock required to execute that particular instruction into time period of that processor. So multiply, you will get the execution time of that instruction. Second thing, your additional time is also required if you are accessing the data from the memory, because वो memory का location ढूंढना, वहां से memory को वो data को fetch करना, बाद में आपके इंस्ट्रक्शन क्यू में डालना, इंस्ट्रक्शन क्यू से एग्जीक्यूट करना ईयू में, इसको भी टाइम लगता है, इसलिए प्लस। और तीसरी बात है, योर एग्जीक्यूशन टाइम आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेदर इफ यू आर एक्सेसिंग अ वर्ड। अगर 8 बिट है तो नो प्रॉब्लम, 8 बिट है तो नो प्रॉब्लम, 8 बिट है तो लोअर इधर भी चलेगा इधर भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वन वर्ड है, दैट इज 16 बिट का बात है, तो अगर इवन में आपका लोअर है पहले, तो वन बस साइकिल में काम होता है। अगर वो लोअर आपका अगर ऑड में है तो आपको दो साइकिल्स लगते हैं, और 2 साइकिल्स बोले तो 8 क्लॉक साइकिल, 8 क्लॉक साइकिल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ इट इज ओके, शैल वी प्रोसीड फर्दर? यस सर। ओके, सो एक इसके बाद एक टेबल लिखो। इन दैट टेबल यू जस्ट राइट डाउन कि पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड को कितना टाइम लग रहा है, पर्टिकुलर addressing mode को how much time it requires. Okay, how much time it requires. So write down, you just make a column, serial number, then addressing mode, addressing mode, और बाद में लिखो number of clock cycles, number of clock cycles. I want everyone to write down this serial number 1. पहले में लिखो direct addressing and number of cycles required is 6. Write down fast. In second, register in मैं short में लिख रहा हूँ, आप full form में लिखो। Register indirect addressing, it requires 5. Third, based addressing, that requires 9. Fourth, index addressing, it requires 9.
फिफ्थ बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग, बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग, ब्रैकेट में लिखो विदाउट डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। प्लस, हम प्लस करने के बाद हम लिखते हैं ना 8 बिट वर्ड, सॉरी 8 बिट नंबर या फिर 16 बिट नंबर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो विदाउट डिस्प्लेसमेंट, विदाउट डिस्प्लेसमेंट 7 to 8, 7 to 8। और सिक्स में लिखो वही BIA विथ डिस्प्लेसमेंट, विथ डिस्प्लेसमेंट। और इसको लगता है 11 से 12, इसको लगता है 11 से 12। जो भी मैं यहाँ पे लेता हूं उसके बाद प्लीज नोट्स रेफर करो, ई बुक रेफर करो, पीपीटी रेफर करो, because not possible for me to cover each and everything, but I am making your foundation, your concepts clear, so that you will be able to understand the further, which I am not taking in the class, in the session, okay, which I am not taking in the session, okay। So मुझे सिर्फ यही बताना है, and it is obvious and you will also agree to me that data that is direct addressing requires 6 register indirect addressing, because you are using the direct addressing में क्या है, direct addressing में you are using the instruction, let me give you that this one, in direct addressing yes, in direct addressing for example direct addressing में यहाँ पे लिख रहा हूँ, it is move dx comma 08h, I'm talking about direct addressing, direct addressing। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग में डायरेक्टली आप मूव dx कॉमा 08h लिख रहे हो, तो मैंने इंस्ट्रक्शन में ही मैंने एड्रेस मेंशन किया है, मैंने इंस्ट्रक्शन में ही एड्रेस को बता दिया है, एड्रेस क्या है वो बताया है, मैंने इंस्ट्रक्शन में ही बताया कि एड्रेस क्या है, ओके। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यानी नंबर ऑफ साइकिल जितने लगने वाले हैं ऑब्वियसली वो कम लगने वाले, इन कंपैरिजन विथ मैं डायरेक्टली ये इस पे आता हूँ, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग विथ डिस्प्लेसमेंट। विथ डिस्प्लेसमेंट बोले तो आप कैसे लिखते हो बेस एड्रेस, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग में, हाउ डू राइट डाउन, यू राइट डाउन, आई विल गिव यू जस्ट एन एग्जांपल, move dx comma in bracket bx plus si plus 0ah 0ah। अभी आप देखो ये वाला इंस्ट्रक्शन देखो और ये वाला इंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ पे तो डायरेक्टली आपका एड्रेस मेंशन है, वो एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा, वो एड्रेस में से डेटा लेना पड़ेगा और वो dx में मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मुझे bx की वैल्यू, si की वैल्यू और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करने के पहले मुझे पहले फिजिकल 20 बिट का एड्रेस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सब अपन ने किया, ओके। bx plus si, here this is bx is a register or you can say based, and here si is the index, that is why base index address, so base is register bx, index is si plus with the displacement plus 0a, plus means with the displacement। तो ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद एक्चुअली हमको वो मेमोरी लोकेशन कैलकुलेट होती है जहां से डेटा लेना है और वो dx में मूव करना है, जहां से डेटा लेना है और वो dx में मूव करना है। सो डोंट यू थिंक ये सब कैलकुलेशन को कितना टाइम लगने वाला है, इसलिए इसको कितना क्लॉक साइकिल्स लग रहे, 11 से 12, यानी 11 से 12 बोलो तो 11 इंटू 0.01,
So 11 1 are 11 1, that is 0 point something like this. सर लास्ट 15 मिनट्स बाकी है. ओके ओके, तो आपको इतना टाइम लगता है, आपको 11 into 0.01 ये टाइम एक्स्ट्रा लगता है आपको एड्रेस निकालने को, आपका एड्रेस निकालने को, ताकि वो एड्रेस में से मैं वो डेटा लूं और डीएक्स में मूव करूं. सो 11 से 12 ज्यादा टाइम लगता है विद BIA, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग विद डिस्प्लेसमेंट. So such type of question can be in the viva. कि which particular addressing mode requires maximum time, which requires less. Tell me the reason why so. So you should be able to give the explanation properly. This is for your understanding. कितने number of cycles लग रहे हैं, इसको 6, इसको 5, इसको 9, इसको 9, इसको 7 to 8, इसको 11 to 12. इसलिए मैंने बताया था एग्जीक्यूशन टाइम में आप अगर मेमोरी को एड्रेस कर रहे हो तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन which addressing mode you are considering, and this different addressing mode will have different clock cycles. So these clock cycles will be getting added with the instruction execution time. Okay, I hope you have understood this. Okay, so this was about the instruction execution time. The next one directly हम जाएंगे हाँ, इसके बाद विल बी गोइंग टू द इंस्ट्रक्शंस देन. ओके, इंस्ट्रक्शंस. सो आई विल बी शोइंग इन द पीपीटी नाउ. आई वांट एवरीवन टू सी दिस पीपीटी जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है. ओके, नाउ आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. शोभित सर. हाँ सर अटेंडेंस कब लेना है बताना. मैं बताता हूँ. My screen is visible to everyone. पीपीटी दिख रही है? Yes sir. ये जो पीपीटी है मैंने शेयर की है. आई वांट एवरीवन टू गो थ्रू दिस. ओके, अभी यहाँ पे जो कुछ है मैंने सब पढ़ा है आपको. ओके, यहाँ पे सभी मैंने पढ़ा है. यू प्लीज गो थ्रू दिस. हमको इम्पोर्टेंट है सर ये पूरा स्टार्टिंग से है क्या, मतलब ये सब स्टार्टिंग से. हाँ, ये सब स्टार्टिंग से. लेकिन अभी ये जो पर्टिकुलर मैंने मॉड्यूल सिखा रहा हूँ ना, मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ, तो आपको डायरेक्टली आपको जाना है. मैं बताता हूँ स्लाइड नंबर. इफ यू हैव टाइम यू कैन गो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड. ओके, लेकिन ये जो है ना मैं जो अभी ले रहा हूँ, दैट थिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि आपको. हाँ, ये देखो यहाँ से स्लाइड नंबर 40, इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड्स एंड इंस्ट्रक्शन सेट. ओके, सो स्लाइड नंबर 40 यू हैव टू गो थ्रू. स्लाइड नंबर 40. ओके, अब यहाँ पे जो है स्टीयर, they have given with an example. Okay, so we are not don't go with this example. They have given that what is a program. They have given what do you mean by instruction. They have explained you what is a computer language, high level, low level, everything we have studied this. Okay, but this is given in very systematically. Okay, this is giving very systematically approach, that they have on the left hand side they have given you the program, and the right hand side they have told you what is a program, what is the instruction. कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं. ओके, मशीन लैंग्वेज बाइनरी 1s and 0s, असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स, असेंबलर, ये हमने सब ऑलरेडी कर चुके. ओके, अभी एड्रेसिंग मोड्स में देखो, ये देखो मैंने बताया था टोटल 12 है. ओके, मैंने ऑलरेडी बताया था टोटल 12 है, और इसका मैंने ग्रुप भी बताया था आपको. ये देखो ग्रुप 1, ये देखो ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, और ये सब नागुर कहानी से ही लिया है. ओके, सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जो भी मैं सिखा रहा हूँ नागुर कहानी से वो ये पीपीटी में अवेलेबल है. ओके, इसके बाद देखो, ये देखो हर एक के बारे में एक्सप्लेन किया. ये देखो रजिस्टर एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग. ओके, देन सी द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, बेस्ड एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग, स्ट्रिंग. ये बाकी के करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू हैव टाइम यू हैव टू गो थ्रू दिस. ओके, देन रिलेटिव एड्रेसिंग,
then implied addressing. See, as far as addressing modes are concerned, you can go with only 7. ये 7 तक जाओ, लेकिन बाकी की भी इसलिए जरूरत भी है, even though you don't write down the answers for the remaining, but these are important as far as some instructions are concerned. जैसे देखो, अगर indirect IO और indirect direct IO में you have instructions in AL, out DS, AX, तो these instructions exam में पूछे जा सकती कि explain me in AL, 09H, तो आपको पता होना चाहिए कि actually ये come under which addressing mode. So for that it is important. इसलिए मैं बता रहा था कि for me it is not possible to take each and everything. Okay, so some of the part please do as a homework, और बाकी की चीज मैं assignment में भी देने वाला हूँ. Okay, so whatever I am not taking here, that will be included in the assignment and that will be given you as a homework. Okay, so here it is, everything is clear. You have to go through this slide. अभी ये देखो instruction set. So after this I am starting with this instruction set. Okay, 8086 supports 6 types of instructions. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. और ये ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है, इनकी सिर्फ एक्सप्लेनेशन बाकी है, और हमको देखना है कि डेटा ट्रांसफर जो पहला नंबर है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले में जाता हूँ, ये देखो डेटा ट्रांसफर में, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा एड्रेस इनटू द रजिस्टर. 2 ऑपरेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, एक रहता है सोर्स, एक रहता है डेस्टिनेशन. साइज होती है इन टर्म्स ऑफ बाइट और ए वर्ड, 8 बिट या 16 बिट. और ये देखो सम एग्जांपल्स. डेटा ट्रांसफर में जो इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड एज निमोनिक्स. द एग्जांपल इज सपोज मूव, XCHG, PUSH push, pop, in and out. Okay, so these are the some instructions they have given. Similarly, exchange का क्या होता है, push में क्या क्या होता है, pop में क्या होता है, they have given in the shortest one. Okay, यानी small explanation they have given, not in the wording. So you'll be able to, I will explain each and everything. Okay, so यहाँ पे सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये PPT जो है, PPT नंबर 4 से आप एक बार देखो. Okay, and in the next lecture I will start with the instruction set. I will start with the instruction set and which are most commonly used and which are mostly asked in the exam. वो instruction set ही मैं करने वाला हूँ, बाकी instructions आपको मैं homework देने वाला हूँ. Okay, I will be giving you as a homework. Next is, I hope you are doing the practicals in the task exam for addition of 8-bit, addition of 16-bit, subtraction of 8-bit, multiplication and division. Already something I have shared with you. The next experiment is regarding, जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, that is regarding the logical operations. So for logical operations मैं briefly आपको बताता हूँ. The logical operations, yes, here it is a logical operation. Yes, please pay attention. The logical operation can be AND, can be OR, can be XOR. Okay, so there are different logical operations which we can perform in 8086, and we have to do some of the logical operations. That is your experiment number 2, which you have to do in TASM. So the flow is same, the flow chart, everything is same. One important thing I forgot to tell you, in every experiment, whatever the program you are writing down, I want its corresponding flow chart and algorithm. इसलिए मैंने आपको experiment number 1 का deadline नहीं दिया है. Okay, I want you to take your own time, there is no problem. I want for every experiment, for every program, there should be a corresponding flow chart, और flow chart के पहले आएगा algorithm. Algorithm और flow chart एक ही बात होती है, but then also I want algorithm and then the flow chart, draw the flow chart. Okay, then आपका program आएगा, बाद में उसका output आएगा. Okay, now please pay attention. I'll be explaining you for the AND code. अगर मुझे 2 नंबर का AND करना है ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, see the flow now, see the flow. पहले वही जो हमेशा हम करते थे, डेटा सेगमेंट को हमको स्पेसिफाई करना है. ओके, नाउ हियर डेटा सेगमेंट में हमने क्या लिया, एक वेरिएबल ए लिया है जिसको हमने डिफाइन वर्ड किया है. ये सेफर साइड के लिए हम डिफाइन वर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमने एक्चुअली यहाँ पे 8 बिट लिया है, 8 बिट लिया है 08. तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, मेरा इंटेंशन क्या है, 08 शुड बी एंड, या फिर एंड ऑपरेशन होना चाहिए 08 और 0A के बीच में. एंड ऑपरेशन 08 और 0A दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन होना है.
तो एक नंबर मैंने जो 08 है दैट इज 8 बिट, 08 इज 8 बिट एंड दैट इज इन द वेरिएबल ए। सो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ डिफाइन वर्ड, बिकॉज आपको पता है वर्ड बोले तो इट इज 16, but here I am using 8 bit, so here you can write down DB। अगर सेफर साइड आपको सेफर साइड खेलने का है तो यू कैन राइट डाउन डिफाइन वर्ड। लेकिन एक बात याद रखना, डिफाइन वर्ड में आप 16 बिट को डिफाइन कर सकते हो, ओके। डिफाइन वर्ड में आप 8 बिट को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा 8 बिट में आप 16 बिट लिख रहे हो और डिफाइन बाइट कर रहे हो। डिफाइन बाइट नहीं कर सकते हो और यहाँ पे 16 बिट नहीं लिख सकते हो, ओके। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो ए वेरिएबल 08, बी वेरिएबल 0A, आपका डेटा सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो गया। आपका कोड सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। कोड सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कोड सेगमेंट में वही मैंने जो बोला था कि स्टार्टिंग की 2-3 लाइन सेम होते हैं। सो कोड सेगमेंट अज्यूम CS कोड कॉमा DS एज डेटा, आपका लेबल है स्टार्ट, मूव X कॉमा डेटा, मूव DS कॉमा X, ये दो हमेशा रहेंगे। दैट इज फॉर व्हाट? इनिशियलाइजेशन ऑफ द डेटा सेगमेंट, इनिशियलाइजेशन ऑफ द डेटा सेगमेंट। शॉर्ट में यही रहता है कि एड्रेस हम डेटा सेगमेंट से बुला रहे हैं तो हमको डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो इसलिए ये दो इंस्ट्रक्शन सेम रहेंगे। तो और आपका एक्चुअली इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, आपका एक्चुअली इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ओके। अब देखो प्रॉपरली, मूव X कॉमा A, आपका 08 है दैट विल बी मूव इनटू AX। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैं सेफ गेम खेल रहा हूँ। यहाँ पे मैं AL लिख सकता था क्योंकि मेरा ये 8 बिट है, लेकिन फॉर सेफर साइड मैं AX लिख रहा हूँ। अगर आप AX भी लिख रहे हो तो भी 08 कहाँ पे जाएगा? AL में जाएगा, और AH क्या होगा? 00 रहेगा। सेकंड वाला देखो, मूव BX कॉमा B, आपका B क्या है? 0A है, ये 8 बिट नंबर है, ओके। दैट इज मूव इनटू BX। आपको पता है BX इज 16 बिट, so this 08 will go to BL and BH will be 00, because वहां पे कुछ भी नहीं तो by default it is 00, ओके। तो इसका मतलब देखो कमेंट में क्या लिखा, फर्स्ट ऑपरेंड मैंने AX में लिया, सेकंड ऑपरेंड मैंने BX में लिया, और बाद में देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंड ऑपरेशन कर रहा हूँ, एंड AX कॉमा BX। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सिंटैक्स है, टैज़म में हम यूज करते हैं एंड ऑपरेशन के लिए, तो ये सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स ये भी बता रहा था कि AX और BX का एंड ऑपरेशन होगा और जो भी रिजल्ट होगा वो AX में स्टोर होगा। INT 03, that is you are calling the interrupt 03, that means in short I can say you are terminating the program. Code ends, आपका कोड यहाँ पे एंड होता है, आपने लेबल स्टार्ट किया था वो एंड हो रहा है यहाँ पे, बस खत्म, नथिंग मोर देन दैट। सो यू हैव टू डू फॉर एंड, यू हैव टू डू फॉर, ये देखो आउटपुट है, ओके। ये सब मैं आपको स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, ये 2-3 एक्सपेरिमेंट के लिए मैं दूंगा, बाकी मैं नहीं दूंगा, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की एक्चुअली आउटपुट कैसे आता है। देन सी द डेटा सेगमेंट, सी दिस इज फॉर, यस दिस इज फॉर और ऑपरेशन। ये देखो और के लिए भी वही है, सिर्फ क्या पे यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, ये देखो और का सिंटैक्स, और AX कॉमा B, ओके। ये और का आउटपुट है। उसके बाद देखो नॉट है, नॉट भी एक लॉजिकल ऑपरेशन है, उसके लिए भी देखो क्या चेंज है, सिर्फ एक चेंज है, ये देखो नॉट AX, ये कमांड है नॉट AX, खत्म, ये हो गया नॉट। बाद में देखो XOR के लिए भी वही है, एक चेंज है, क्या है वो ये है XOR AX कॉमा BX। छोटे छोटे चेंजेस है, ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, ओके। ये हो गया XOR के बारे में। बाद में शिफ्ट ऑपरेशन, ये लॉजिकल ऑपरेशन में शिफ्टिंग भी आता है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ओके। सो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट है मुझे लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए SHLAX। देखो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन सेट अभी मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर से, तो उसमें मुझे हर एक इंस्ट्रक्शंस लेने, तो उसमें ये सब आने वाला है, SHL क्या होता है, SHR क्या होता है। बट फॉर टाइम बिंग यू कैन जस्ट थिंक दैट दिस इज शिफ्ट लेफ्ट, दिस इज शिफ्ट राइट, बट बाय हाउ मेनी बिट्स? बाय 2 बिट्स, ओके। सो ये एक्सप्लेनेशन मैं सब बाद में दूंगा, बट एटलीस्ट यू कैन डू, और यू कैन डू एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन एंड XOR ऑपरेशन, एटलीस्ट ये 4 करो, ओके। ये बाद में शिफ्ट ऑपरेशन मैं बाद में लूंगा आपका। एंड देन शिफ्ट ऑपरेशन होने के बाद एक रोटेशन भी है, रोटेशन एंड शिफ्ट विल आल्सो कम इन द लॉजिकल ऑपरेशन,
तो ये रोटेशन के लिए ये देखो ये दो कमांड, दिस इज रोटेट लेफ्ट एंड दिस इज रोटेट राइट। ओके, ये दो है और आई थिंक दैट इज द एंड, ओके। So as far as these logical operations are concerned, इसके रिलेटेड जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट 1 के लिए आपको जो भेजा था, वैसे मैं आज आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का भेजता हूँ, लॉजिकल का। यू डू इन द TASM, okay, run the command, see the output, see the register values, everything you see, okay. In the next lecture I'll be starting with the instruction set, as well as I will, if time permits, I will take in the TASM। मैं TASM में भी आपको बताऊंगा कि ये सेम मैं बताऊंगा और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, but before that I want everyone to do by themselves। Is it clear? Any questions? Any questions? Okay, okay. So today I'll be sending you this. Okay, today I'll be sending you this. Already I have sent you the PPT and the ebook. Please go through that. That is very important. Okay. And इसका मैं जो कोड है ये भी मैं आज लॉजिकल का भेजता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि आउटपुट में एक्चुअली कैसे आता है, ये जो चीजें है ना ये कैसे आती है। ओके, परमेश्वरी, यू कैन टेक द अटेंडेंस। Students, call out your roll numbers. 1. 1 present, ma'am. 2 present, Next ma'am. roll number. 2 present, ma'am. 3 present, ma'am. 5 3 present, 4 ma'am. absent. 4 absent. Five. Okay. 5 present, ma'am. 6 present, ma'am. Okay, next. 7 absent. Next roll number. 8 present, ma'am. 8 present. 9 present. 10 present, 11 absent. Next roll number. 12 present, ma'am. 13 present, ma'am. 14 present. Next roll number. 15 16 present. present. Next roll number. 16. 16 present. Next roll number. 18 present. 19 present. 20 present. 17 absent, huh? 17 present, 18 present, next roll number. 19 absent, next roll number. 20 Ma'am, present. 19 is present. Yes, said present. I'm 19. Hello. I called out my roll number. 20. 20 present, ma'am. 21 present, ma'am. 22 present, ma'am. 23 present. 24 present, next roll number.